تاریخ گواہ ہے کہ دشمن نے ہر دور میں ہماری یکجہتی اور آزادی پر وار کرنے کی بہت سی کوششیں کی. جب میدان جنگ میں رسوا ہوا تو نت نئی سازشیں بن کر وار کیا. This is the basic thing in this whole ongoing situation, the Indian state-sponsored cross-border terrorism. ہماری پیشہ ورانہ اور جاں باز افواج نے اللہ تعالی کی مدد سے دشمن کی ہر چال اور ہر وار کو ہمیشہ ناکام بنا کر اسے ذلت سے دوچار کیا اور فتح و کامرانی حاصل کی. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. بے شک وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. اس کا ثبوت دیکھنا ہو تو مارکہ حق کی داستان سنیجیے. ایک ایسی داستان جس کا آغاز تو ہمیشہ کی طرح بھارت کی طرف سے رات کی تاریکی میں کی گئی مکاری سے ہوا. بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل طیاروں کی مقبوضہ کشمیر میں پیٹرولنگ اور 29 اور 30 اپریل کی رات پیٹرولنگ کی ہے. بھارتی رافیل طیارے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر فرار ہو گئے. ہم تیار ہیں, آزمانا نہیں. We are ready. Don't test. مگر اس کا اختتام دن کے اجالے میں بہادری سے سینہ تانے پاک وطن کے شیروں نے کیا. مارکہ حق محض ایک مارکہ نہیں, یہ وفا ہے اس عہد سے جو ہمارے آباء و اجداد نے ہم وارثوں سے کیا. یہ تکمیل ہے اس ایمان کی جو رب پاک نے ہمارے سینوں میں اتارا. اور یہ مارکہ محض مارکہ نہیں, یہ قبولیت ہے اس دعا کی جس کے لیے میدان بدر میں دست اقدس اٹھے. 22 اپریل 2025 بھارتی زیر تسلط جموں کشمیر کا علاقہ پہلگام. ایک اور جھوٹ, ایک اور چال. اس حادثے میں کئی بے گناہ شہری مذموم بھارتی منصوبے کی بھینٹ چڑھا دیے گئے. بھارت نے حسب روایت کچھ ہی لمحوں میں اس حادثے کا الزام بغیر تحقیق کے فوری طور پر پاکستان پر عائد کر دیا. ہمیشہ کی طرح بھارتی میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ اور غیر مصدقہ کردار اس حادثے کے حوالے سے ظاہر کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ کسی اسکرپٹ کا حصہ ہے. مگر اس بار دنیا بھارت کے جھوٹ کی پٹاری کھلتے ہی اصلیت پہچان گئی اور بھارت کی یہ فلم فلاپ ہوتی دکھائی دینے لگی. جھوٹی FIRs, جعلی نقشے اور بے سروپا دعوے, نہ دلیل نہ ثبوت, صرف چیخ و پکار. Top story is the development that's taking place in Pahalgam terror attack. اور تو اور خود بھارت کے عوام اور بصیرت رکھنے والے سیاستدانوں نے سوال اٹھا دیے اور اسے مودی سرکار کی ایک سیاسی چال قرار دے دیا. اتنے بھی کانڈ ہوئے ہیں, یہ مودی نے کروایا, امت شاہ نے کروایا. میری بات بتا رہا ہے, کاٹنا مت اس کو. میں آرمی میں نوکری کی ہے, جہاں سلانی مرے ہیں نا وہاں میری ڈیوٹی ہوتی تھی. اتنی سیکورٹی والی چیز ہے. امت شاہ گیا 1 ہفتے پہلے, وہ تینوں پوسٹ ہٹا کے آ گیا. ہفتے کے بعد ایک کانڈ ہو گیا. وہاں پہ سیکورٹی کیوں نہیں تھی, کیوں نکالی گئی؟ تو تمہارا انٹیلیجنس کیا کر رہا تھا؟ سرکار کا فیلئر نہیں ہے. سرکار تو گئی ہوئی ہے, مطلب اتنا بڑا آتنکوادی کا حملہ ہوا, ان کی کچھ پتہ ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو چوکیدار کو پکڑے گا نا کہ تم کہاں تھے, کیوں یہ گھٹنا ہو گئی تمہارے رہتے ہوئے. آتنکواد تو محض ایک بہانہ تھا. در حقیقت مودی سرکار خود ساختہ طاقت کے نشے میں مبتلا اس بار بھی ایک اور غلطی کرنے والی تھی. دوسری جانب پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا. ہر محاذ پر امن کو ترجیح دی. پاکستان کی ذمہ دارانہ سوچ کو پاکستان کی کمزوری سمجھا گیا. 6 اور 7 مئی 2025 کی درمیانی شب
दुश्मन ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बिला जवाज जारहियत का इंतकाल करते हुए नहत्ते और मासूम शहरियों बिलखसूस बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। इस बिला जवाज जारहियत के दौरान शहरी इलाकों, मसाजिद और इबादत गाहों को भी निशाना बनाया गया। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाए इंशाअल्लाह। दुश्मन जिस पर पाक फौज की धाक बैठ चुकी है ने सरहद पार करने की गलती नहीं की, क्योंकि इनके जहन में अभिनंदन की हजीमत मौजूद थी। फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के बहादुर मुहाफिजों ने दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तानी मुहाफिजों ने दुश्मन की हदूद में 6 भारतीय त्यारे तबाह कर दिए जो छुपकर हमला करने आए थे। PF वर्सेस IF 6 Navy। हमारी हवाई फौज ने एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर की क़यादत में 7 जहाज गिराए। उस रात भारत के हवास बाख्ता और बेबस त्यारे लॉक हो चुके थे और पाकिस्तान के रहमो करम पर थे, लेकिन पाकिस्तान का रद्द अमल मुतवाजन, सोचा समझा और जंग की शिद्दत को कंट्रोल में रखते हुए था। हमारी तीनों अफवाज और कौम एक आवाज, एक सफ में खड़ी थी। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का सबूत देते हुए महज चंद त्यारों को हदफ बनाया, और ये वही त्यारे थे जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ मिसाइल चलाने की हिम्मत की थी। अब भारत बदले की आग में सुलग रहा था। अपनी जिल्लत और जग हसाई में बावले हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर ये सोचकर किया कि वो पाकिस्तान को दबा पाएगा, शिकस्त दे पाएगा, मगर उसे क्या मालूम कि हैदर कर्रार के वारिसों को भला कौन दबा सकता है। सरहद पार करने की जुर्रत न थी तो तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने लगा। पाकिस्तान की बहादुर कौम और पाक अफवाज ने हर एक शरारत का मुंह तोड़ जवाब दिया। हर तरकीब नाकाम हो रही थी, हर चाल उल्टी पड़ रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई दरअंदाजी तो ऐसी थी जैसे भारत किसी शेर की कछार की जानेबा धमका हो। इसका मुकाबला इन 24 करोड़ हैदर कर्रार के शेरों से था, जिनकी धाड़ से जल्द दुश्मन का दिल फटने वाला था। पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत ने मिलकर भारत को सबक सिखाने के लिए एक मुनज़्ज़म और कारगर मंसूबा तरतीब दिया और इंतहाई जिम्मेदाराना और मुअस्सर तौर पर सरहद पार सिर्फ फौजी अहदाफ का इंतखाब किया। इस रोज सुबह सादिक की फिजा में अल्लाहु अकबर के नारे गूंजने लगे। मक्कार दुश्मन की तरह रात के अंधेरों में छुप कर नहीं, बल्कि अपने आका फातिह बद्रो हुनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक सुबह सादिक नमाज फज्र अदा करके ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के मुक़द्दस नाम से दुश्मन पर ज़र्ब लगाने का सिलसिला शुरू हुआ। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को लॉन्च कर दिया है। नारे पाक वतन के मुजाहिदों ने जिम्मेदारी के साथ फौजी तंसीबात को निशाना बनाना शुरू किया। मक्कार दुश्मन के एक एक फौजी ठिकाने को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया।
Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets. Is targeting military facilities in India. We have seen this pattern of strikes in the morning, then retaliation strikes at night. It is hard to imagine from this moment. उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में। सिरसा को आपने बताया एयरबेस है वहां पर, उसको उसने टारगेट किया है और तो वो ड्रोन्स के साथ साथ अपनी बड़ी मिसाइल भी दाग रहा था। पूरी तरह से धमाकों की जो आवाजें हैं वो राजौरी, पुंछ के साथ साथ जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में ये इस्तेमाल करेगा। अब सरहद जमीनी हो, फिजाई या बहरी, टेक्नोलॉजी हो, अबलागी महाज हो या अज़्म का मुकाबला, पाक वतन के जाबाजों ने दुश्मन की नींदें उड़ा दी। कौम की माओं की दुआओं के साए तले पाक वतन के जानिसारों ने इंतहाई दुरुस्तगी से फतह मिसाइल दाग कर वो फतह हासिल की कि जिसकी हैबत आज भी दिल्ली की दीवारों में महसूस की जा सकती है। ख्वाह वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मैदान हो या मीडिया का मोर्चा, हर फर्द वतन से वफा की मिसाल बन गया। हमें फख्र है अपने बाकमाल साइंसदानों और हुनरमंदों पर, जिन्होंने भारत का फौजी गरूर मुल्की टेक्नोलॉजी के जरिए जमीन बोस कर दिया और जंग के जदीद तकाजों में पाकिस्तान का लोहा मनवाया, जिसकी महारत ने अरबों डॉलर का दिफाई निजाम और मिसाइल सिस्टम राख बना दिया। All the way down to Bhuj, there were several attacks coming in from the Pakistan side, several drone strikes which were coming in from the Pakistan side. हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी जिसने दुश्मन को अपने ही शहरों में बेचैन कर दिया, भारतीय कमांड एंड कंट्रोल और साइबर सिस्टम को ऐसे जाम किया कि दुश्मन देखता ही रह गया। भारत के घमंडी ख्वाब अब खाक बन चुके थे। ऑपरेशन सिंदूर अब बेसूद होता दिखाई दे रहा था। हमारी कौम ने बिला तफरीक एक होकर भारत को दिन में तारे दिखा दिए थे। पूरी कौम पुरजोश थी, एक एक सीना दुश्मन की जारहियत के खिलाफ बुनियानुन मरसूस बन चुका था। जल्द ही भारत घुटने टेकता नजर आने लगा। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। भारत घुटने टेकता नजर आने लगा। दुनिया भी भारत की पाकिस्तान के हाथों ऐसी फौरी और मुअस्सर दुर्गत का तमाशा खूब देख रही थी। मजीद जिल्लत से बचने के लिए भारत फौरन सालसी और डी-एस्केलेशन की मिन्नत समाजत करने लगा। और यूं जिस मार्के की इब्तदा बातिल से हुई, वो मार्काए हक बनकर तारीख के सफहात में ताअबद दर्ज हो गया। अक़वाम आलम में पाकिस्तान की बावकार फतह का राज कायम हो गया, जबकि भारत जिल्लत की आग में सुलग रहा है। अपनी रुसवाई के हाथों मजबूर भारत को बाखूबी इल्म हो चुका है कि पाकिस्तान को मैदान जंग में बराह रास्त शिकस्त देना नामुमकिन है। लिहाजा भारत प्रॉक्सी जंग के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के जरिए मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। भारत पाकिस्तान में फिर से नफरत, तफरीक और दहशत फैलाकर इसे कमजोर करने की बेसूद कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान रब ताला की देन है और ये हमेशा कायम रहने के लिए बना है। भारत का गैर इंसानी, गैर जिम्मेदाराना और गैर पेशावराना तर्ज अमल और पाकिस्तान का ऐसा असूली, जिम्मेदाराना और पेशावराना रद्द अमल पूरी दुनिया के सामने आया हो चुका है। पाकिस्तानी अवाम, क़यादत और मुसल्लह अफ़वाज ने इस तारीखी मार्के में दुनिया को ये बावर करवाया है कि जब मामला वतन अजीज की सालमियत और बका का हो तो हम तैयार भी हैं, होशियार भी हैं और पाकिस्तान पर मर मिटने को तैयार भी हैं। जिंदाबाद!